بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی. مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان. نواں باب، نواں ادھیائے. تمام انسانوں اور مخلوقات کو حقیقی سکون اور امن سلامتی دینے والے دین یعنی دھرمیم سسکھم یعنی اسلام کی حقیقت. کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ لیکن اے ارجن، تم خالق سے یا کسی مخلوق سے حسد نہیں رکھتے، اسی لیے تمہیں اس انتہائی پوشیدہ غیب کے علم کو حکمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جسے جان کر دنیا کی تمام تکلیفوں اور خوف و غم سے آزاد ہو جاؤ گے. امن اور سلامتی والے دین کا یہ علم تمام علموں کا بادشاہ ہے، علم غیب یا رازوں کا بادشاہ ہے اور نہایت پاک علم ہے. یہ سب سے عظیم اور لافانی خالق کی طرف سے سیدھا اور بالکل واضح نازل کیا گیا ہے. اے پرنتپ یعنی ارجن، اس امن اور سلامتی والے دین پر ایمان نہ لانے والے انسان بار بار موت والی دنیا یعنی جہنم کے راستے میں ہی پیدائش اور موت کی گردش میں پھنسے رہتے ہیں. اسی وجہ سے وہ مجھے کبھی حاصل نہیں کر پاتے. خدا کوئی انسان، مخلوق، مورتی یا مادی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نہ دکھائی دینے والی روحانی ہستی ہے. قیامت، ارض کی تبدیلی اور پنرجنم. خدا کو مورتی یا جسم رکھنے والی مخلوق یا انسان سمجھنا ایک شیطانی نظریہ ہے. فطرت الشیطان. کرشن نے کہا، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری نہ دکھائی دینے والی مورتی یعنی نہ دکھائی دینے والے جسم یا شکل کے ذریعے اس ساری دنیا کا پھیلاؤ ہے. تمام مخلوقات مجھ سے قائم ہیں اور میں ان سے قائم نہیں ہوں، اور میں مخلوقات میں موجود بھی نہیں ہوں اور مخلوقات مجھ میں موجود نہیں ہیں. ثبوت کے طور پر میری قدرت سے جڑی ہوئی مخلوقات کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ میں از خود تمام مخلوقات کا اکیلا خالق اور تمام مخلوقات کو پالنے والا ہوں. جس طرح آسمان میں نہ دکھائی دینے والی زبردست ہوا ہر جگہ اور ہمیشہ قائم رہتی ہے، اسی طرح تمام مخلوقات کو مجھ سے قائم جانو. اے کنتی کے بیٹے یعنی ارجن، میں نے کائنات کی شروعات میں ان تمام انسانوں کو تخلیق کیا ہے، اور کائنات کے خاتمے یعنی قیامت کے وقت میری مرضی سے خدائی قدرت کے ذریعے تمام انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. میری اپنی قدرت کے سہارے مخلوقات کی مختلف انواع کو بار بار تخلیق کر رہا ہوں. مرنے کے بعد ان تمام کو دوبارہ ضرور بضرور تخلیق کروں گا، کیونکہ یہ میری تخلیقی قدرت کے بس میں ہے. اے دھننجے یعنی ارجن، میں غیر جانبداری اور بے غرضی کو قائم رکھتے ہوئے ان کاموں میں لگا ہوا ہوں، اس لیے مجھے یہ اعمال کبھی بھی مخلوق سے بدلے اور صلے کی توقع میں نہیں باندھتے. اے کنتی کے بیٹے، میری تخلیقی قدرت کے حکم سے ہی جاندار اور بے جان چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے اس دنیا یا ارض کو تبدیل کرنا بھی میری قدرت کے قبضے میں ہے. مجھ کو تمام مخلوقات کا عظیم حاکم اور سب سے اعلیٰ خالق نہ مان کر بے وقوف لوگ مجھے انسان کی طرح جسم رکھنے والی مخلوق مان کر میری پناہ میں آتے ہیں یا میری عبادت کرتے ہیں. خدا کو انسان، مخلوق، جسم والا یا مورتی سمجھنا بلا شبہ ایک شیطانی سوچ یا نظریہ ہے، اور اسی گمراہی اور الجھن سے لوگوں نے شیطانی فطرت
कुदरत और ताकत की पनाह ले ली है। इसीलिए इन लोगों का इल्म ज़ाय हो गया, इनके तमाम अमाल ज़ाय हो गए, इनकी तमाम उम्मीदें और तवक्कात ज़ाय हो गईं। शिर्क ना करते हुए एक खुदा की इबादत करो। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि लेकिन ऐ पार्थ यानी अर्जुन, अजीम इंसान किसी और मखलूक या देवता को मन में लाए बगैर मेरी रूहानी यानी गैर मादी कुदरत और फितरत पर ईमान लाते हुए मेरी पनाह लेते हैं। वो मुझे तमाम मखलूकात की शुरुआत करने वाला और लाफानी भी मानते हैं। मेरी इबादत में सब्र के साथ लगे हुए ये अजीम इंसान हमेशा मेरी बड़ाई बयान करते हुए मेरी राह में अमलन जद्दोजहद, कोशिश और जिहाद करते हुए और अपने अहद पर मजबूती से कायम रहते हुए और मुझे ही सजदा करते हुए मेरी इबादत करते हैं। इल्म के मुताबिक इबादत करने वाले बिला शोबा मुझको एक मानकर यकसुई से इबादत करते हैं, और दूसरे इल्म के मुताबिक अमल न करने वाले लोग दुनिया की बहुत सारी अलग अलग शक्ल रखने वाली मखलूकात, चीजों या मूर्तियों की इबादत करते हैं। खुदा के औसाफ, काम और उसकी निशानियां। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि मैं खालिक हूं, मैं वही नाजिल करने वाला हूं, सुकून और खुशी मैं हूं, मैं दवा हूं, मैं दुआ हूं, गौर फिक्र मैं हूं, बेशक घी या बकरे का गोश्त मैं हूं, मैं नूर हूं। इस दुनिया का बाप, माँ, दादा और पालने वाला मैं हूं, जानने के लायक पाक ओमकार हूं, और बेशक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को नाजिल करने वाला मैं ही हूं। मैं मंजिले हयात हूं, पालने वाला रब हूं, मैं मखलूक नहीं हूं, मैं गवाह हूं, रहने की जगह मैं हूं, मैं हकीकी पनाह हूं, मैं अजीज दोस्त यानी वली हूं, खालिक हूं, मैं कायनात की हम आहंगी का खात्मा यानी कयामत बर्पा करने वाला हूं, मैं जमीन हूं, मैं आराम की जगह हूं, मैं तमाम मखलूकात का अजली बीज हूं, मैं लाफानी हस्ती हूं। ऐ अर्जुन, गर्मी मैं हूं, मैं बारिश नाजिल करता हूं और रोकता हूं, बार बार मौत वाले जहन्नम के मुकाम का खालिक हूं, और बेशक वो जन्नत का मुकाम भी हूं जहां मौत नहीं है, हमेशा कायम रहने वाली आखिरत और हमेशा कायम ना रहने वाली दुनिया को तख्लीक करने वाला मैं हूं। जन्नत, जहन्नम और आवागवान की हकीकत। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि जो लोग तीनों वेदों में बताए गए जन्नत में मिलने वाले जामे कौसर को पीने के लिए और जन्नत की मंजिल हयात को पाने के लिए दुआ करते हैं, वो लोग दुनिया में गुनाहों से पाक होकर आमाल सोलेहा करते हैं, सिर्फ मेरी इबादत करते हैं, और फिर नेक आमाल के सिले के तौर पर जन्नत में फरिश्तों यानी देवताओं के आलम में बादशाहों की तरह देवताओं यानी फरिश्तों के जरिए दी गई ऐश व आराम की चीज़ों से रूहानी लुत्फ उठाते हैं। वैसे इन तीनों वेदों में बताए गए दीन या कवानीन की पैरवी करने वाले ये लोग नेक अमाल में कमी के सबब बार बार मौत वाले जहन्नम के आलम में नीचे गिराए भी जाते हैं। इसके बाद वसी और इस जन्नत वाले आलम के इन मज़ों से लुत्फ अंदोज होते हैं, जबकि खुदा परस्ती को छोड़कर ख्वाहिश परस्ती की वजह से ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले लोगों का सिर्फ जहन्नम में आना यानी पैदाइश और जाना यानी मरना लगा रहता है। किसी और की इबादत न करते हुए तौहीद पर कायम रहना और उसके फायदे। देवता परस्ती, बुजुर्ग परस्ती और मखलूक परस्ती की हकीकत और अंजाम। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि जो इंसान
किसी और मखलूक या देवता को ख्याल में लाए बगैर मुझ एक खुदा की मुकम्मल तौर पर इबादत करते हैं, उन सब्र के साथ इबादत में लगे हुए लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने की और उनके जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेकर चलता हूँ। ऐ कुंती के बेटे यानी अर्जुन, बेशक जो इबादत करने वाले दूसरे देवताओं या फरिश्तों पर ईमान रखकर उनकी इबादत में लगे रहते हैं, बिलाशुबा वो लोग भी मेरे अहकामात, हिदायत और कवानीन की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी करते हुए मेरी इबादत करते हैं, क्योंकि हकीकत में तमाम इबादत को खरीद कर उनका अज्र देने वाला मालिक और हाकिम सिर्फ मैं हूँ। और बिलाशुबा मैं तख्लीक किया गया यानी इंसान, मखलूक या देवता नहीं हूँ। लेकिन मेरी इस हकीकत को जो लोग नहीं जानते और मखलूक या देवताओं की इबादत करते हैं, ऐसे लोग जहन्नम में गिरकर बार बार पैदाइश और मौत की गर्दिश में घूमते रहते हैं। देवताओं यानी फरिश्तों की इबादत करने वाले मरने के बाद देवताओं के पास जाएंगे, बुजुर्गों की इबादत करने वाले बुजुर्गों के पास जाएंगे, मखलूकात की खुशनुदी के लिए अमल करने वाले मखलूकात के पास जाएंगे, लेकिन मेरी इबादत करके मेरी खुशनुदी के लिए अमल करने वाले मेरे पास जन्नत में आएंगे। हर अमल साले खुदा की रजा के लिए करो। हर अमल साले का अज्र खुदा से चाहो। जो भी नजर करना है वो सिर्फ खुदा की नजर करो। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि मन को शिर्क से पाक रखने वाला आबिद इबादत के जज्बे से मेरी राह में जो भी पत्ता, फूल, फल या पानी नजर करता है वो मैं कबूल करता हूँ। ऐ कुंती के बेटे यानी अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ नजर करते हो, जो कुछ सदका और खैरात देते हो, जो कुछ खुदा की राह में जद्दोजहद करते हो, वो सिर्फ मुझे जहन में रखते हुए नजर करो। इस तरह अपने आप को इबादत में लगाकर तमाम अमाल के अच्छे और बुरे सिले को छोड़कर तुम मखलूक से अमाल के अज्र की तवक्का में फंसने से आज़ाद हो जाओगे और आज़ादी मिलते ही मुझे पालोगे। तमाम मखलूकात को मैं गैर जानिबदारी, मसावत और इंसाफ की नज़र से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई काबिल नफ़रत है और न ही काबिल मोहब्बत है, लेकिन मुझ पर ईमान रखते हुए जो शख्स मेरी इबादत करता है वो बिलाशुबा मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। शिर्क से बचने और आमाल सालिहा की वजह से इंतहाई गुनहगार शख्स भी जन्नत में दायमी सुकून पा सकता है। दुनिया बेसुकूनी की जगह है और जन्नत दायमी सुकून यानी शाश्वत शांति का मुकाम है। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि अगर कोई इंतहाई गुनाहगार शख्स भी किसी और मखलूक या देवता की इबादत किए बगैर मुझ पर ईमान ले आता है तो बिलाशुबा उसे नेक इंसान मानना चाहिए, क्योंकि हकीकत में वो मुकम्मल और सही ईमान और अकीदे वाला है। सही अकीदा और ईमान होने की वजह से वो बहुत जल्द खुदा के दीन यानी कवानीन पर अमल करने वाला इंसान भी बन जाएगा और उसे मरने के बाद जन्नत की दायमी सलामती हासिल होगी। इसीलिए ऐ कुंती के बेटे यानी अर्जुन, खूब अच्छी तरह जान लो कि मेरी बंदगी करने वाले आबिद कभी भी बेसुकूनी, बर्बादी, बदअमनी और तनाव का शिकार नहीं होते। ऐ पार्थ यानी अर्जुन, मेरी पनाह लेने वाले यानी मेरी इबादत करने वाले जो भी इंसान हों, चाहे वो गुनाहगारों की नस्ल से हों, औरतें हों, किसान या ताजिर हों या खिदमतगार मजदूर हों, बेशक ये सभी जन्नत की सबसे आला मंजिल हयात को पाएंगे। फिर खुदा का इल्म रखने वाले ब्राह्मणों, नेक लोगों, आबिदों और रसूल जो बादशाह हुए, उन लोगों का क्या कहना। इसीलिए
اس ہمیشہ نہ رہنے والی سکون نہ دینے والی دنیا کو حاصل کر کے کیا ہوگا؟ دائمی سکون والی جنت کو پانے کے لیے میری عبادت میں لگ جاؤ، مجھے اپنے من میں رکھ کر میرے غلام بن جاؤ، میری خوشنودی کے لیے اعمال صالحہ کرو، مجھ کو ہی سجدہ کرو۔ بے شک اس طرح اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر میرا سہارا لے کر تم مجھے پالو گے۔ 9واں باب 9واں ادھیائے ختم ہوا۔